Good morning, students. Welcome back. Today we will do the things practically which we have learned in last video. So first of all, we will see how many ways we can insert an image into the document, right? So first option is from insert menu, picture, then from file option, right? Here you will take the picture from the location from where you want. So I am taking from pictures. This is my picture. Open it. You can see picture has been inserted in the document. Okay. As well as you can see how can we resize the image. You can see these all green square boxes. These are size handles. We can resize by dragging the mouse pointer on these green boxes, right? And you can change the place of picture by the help of this four-headed mouse pointer like this, right? And next option is, you can see the gallery option in the right side of the screen. Click on this option. You will have so many options: background, bullets, computers, diagrams, okay, environment. तो यहाँ से आप जो भी आप पिक्चर लेना चाहते हैं वहाँ पर आप क्लिक करिए और उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट करके देन कॉपी, ठीक है ना। तो क्या किया इसने, पहले वाली पिक्चर को रिप्लेस कर दिया। बट अगर आपको ये भी चाहिए और पहले की पिक्चर भी चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कंट्रोल Z किया है फिलहाल, क्योंकि मुझे वो पिक्चर भी चाहिए। मैंने कंट्रोल Z कर दिया है और यहाँ पर आकर के जब मैं एंटर की प्रेस करूँगी तो देखिए कर्सर यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है। अब मैं यहाँ पर जा कर के गैलरी की इमेज को ले सकती हूँ। देखिए दोनों इमेजेस आ गए हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम गैलरी से भी ले सकते हैं और फ्रॉम फाइल से भी ले सकते हैं, ठीक है। I will do Control Z again and again because I have to show you all the effects, right? अभी देखिए मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो पिक्चर टूल बार हमको यहाँ पर साइड में मिलेगी। तो यहाँ से हम सारे इफेक्ट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर द ऑप्शन इज फ्रॉम फाइल ऑप्शन, राइट। जैसे हमने इंसर्ट पे क्लिक करके अपनी फाइल को इंसर्ट किया था, अपनी इमेज को इंसर्ट किया था, बिल्कुल वैसे ही ये ऑप्शन मिलता है यहाँ से हमको, फ्रॉम फाइल ऑप्शन, राइट। इसके बाद कुछ इफेक्ट्स देखते हैं इसमें हम। फिल्टर ऑप्शन, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वर्ट, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यू कैन सी द इफेक्ट inverts the color value of a colored image, right? Next one is, first of all I will do the Control Z because I have to show you all the effects, right? Second one is smooth. As soon as you will click on this option you will see this option soften the contrast of an image, right? Next one is sharpen. Sharpen will increase the contrast of an image. नेक्स्ट वन इज रिमूव नॉइज। रिमूव नॉइज पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये क्या करेगा, रिमूव सिंगल पिक्सल फ्रॉम एन इमेज। अगर आपकी इमेज में कोई सिंगल पिक्सल है तो उसको ये रिमूव कर देगा। नाउ सोलराइजेशन। सोलराइजेशन मिमिक्स द इफेक्ट्स ऑफ टू मच लाइट इन अ पिक्चर। यू कैन इंक्रीज थ्रेशोल्ड वैल्यू फ्रॉम हेयर। As soon as you will increase the value you can see the effect in this picture, right? Can you see? Okay, right. Next one is aging. Aging simulates the effect of time. Here you can increase the degree and see the effect. Okay, can you see the effect? Control Z. Next one is
पोस्टराइज। पोस्टराइज क्या होता है? मेक्स अ पिक्चर लाइक अ पेंटिंग बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ कलर्स यूज्ड, राइट। देखिए यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे कोई पेंटिंग बनी हुई है, राइट। दोबारा देख लेते हैं इसको, देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज पॉप आर्ट। पॉप आर्ट से क्या होता है? पॉप आर्ट मॉडिफाइज द पिक्चर ड्रामेटिकली। लेट अस सी। देख रहे हैं आप, एकदम इफेक्ट्स बिल्कुल डिफरेंट हो गए। नेक्स्ट वन इज चारकोल स्केच। This is also very very interesting. Displays the image as a charcoal sketch. Can you see? Now next is relief. Adjust the light source that will create the shadow. First of all I have to Control Z, then we can see the effect. Relief. Adjust the light source that will create the shadow. See. Next one is mosaic. What does it mean? Okay, first of all I have to do Control Z, then use this option. क्या होगा देखिए इसमें, देख सकते हैं पिक्चर आपकी ब्लर हो गई, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस आप करके देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सारे ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट वन इज कलर। कलर में क्या है देखिए, डिफरेंट कलर्स हैं। आप यहाँ से इनकी वैल्यूज़ इंक्रीज करेंगे तो आप इसका इफेक्ट देख पाएंगे। रेड कलर बढ़ रहा है, देख रहे हैं आप। यहाँ से आपका ग्रीन कलर का इफेक्ट इंक्रीज होगा, कैन सी, राइट। तो इस तरह से कलर्स के इफेक्ट्स आप यहाँ से डाल सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में क्या है, इसकी वैल्यूज आप इसकी वैल्यू आप बढ़ाकर देखिए, ट्रांसपेरेंट होता जाएगा, देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट हो गया, राइट। तो इस तरह से हम इसको सारे इफेक्ट्स को यूज करके देखेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, फ्लिप हॉरिजॉन्टली। जस्ट क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, यू विल सी हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर गया, अब ये वर्टिकली फ्लिप कर गया। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी पिक्चर के ऊपर, राइट। नाउ नेक्स्ट वन इज क्रिएट ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स, देन सेट और चेंज द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स कहाँ से ले सकते हैं। व्यू मेन्यू के अंदर हम टूल बार्स में जाएंगे एंड देन ड्राइंग। देखिए ड्राइंग पे क्लिक किया, यहाँ पर ड्राइंग टूल बार आ गई। जैसे आपका MS वर्ड के अंदर शेप्स होते हैं, इंसर्ट के अंदर शेप्स होते हैं, बिल्कुल वही है। यहाँ से आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स ले सकते हैं, देखिए सेम है वैसे ही। आप इसको माउस के पॉइंटर को ड्रैग करिए, ये शेप आपकी क्रिएट हो जाएगी। अब जैसे ही इस पे हमने, अब जैसे ही ये शेप क्रिएट हुई और इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप देखिए इससे रिलेटेड सारे प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पर मिलेंगे। फॉर्मेटिंग टूल बार हैज़ बीन डिसअपियर्ड एंड द प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू दिस इमेज हैव बीन कम। तो आप देखिए इसकी लाइन स्टाइल्स हम किस तरह से ले सकते हैं, कंटिन्यूस ले सकते हैं, फाइन डैश ले सकते हैं, या आप 3 डैशेज ले सकते हैं, देख रहे हैं आप। यहाँ से आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं। थोड़ी सी इसकी विड्थ बढ़ा लेते हैं जिससे कि क्लियर हो जाएगा ठीक से, ओके। यहाँ से आप लाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, ऑरेंज हो गया। यहाँ से फिल कलर ले सकते हैं, कलर यहाँ पे देखिए फिल कलर, ठीक है।
अब यहाँ से आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे रोटेट पे क्लिक किया, ये जो इसका ये जो हैंडल है इसका शेप चेंज हो गया, ये देखिए। ठीक है, इस तरह से आप रोटेट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं आपके ड्राइंग टूल बार से रिलेटेड हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या रह गया अभी हमारा, रिसाइज एंड ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। हम रिसाइज भी कर सकते हैं, जैसे हम इमेज में कर रहे थे, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए, साइज हम इसका रिड्यूस कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम इसको साइज को घटा सकते हैं या बढ़ा सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। यू कैन सी, राइट। नेक्स्ट वन इज रिसाइज एंड ग्रुप ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको दो या दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को हम सिलेक्ट कर लेते हैं एक साथ, और फिर राइट क्लिक करके ग्रुप पर जाएंगे, देन ग्रुप। तो जैसे ही मैं इनको मूव कराऊंगी, दोनों एक साथ मूव होंगे। देखिए, देख रहे हैं आप। तो ये होता है ग्रुपिंग। अब अगर हमको फिर से अनग्रुप करना है तो फर्दर वही हमें करना होगा, राइट क्लिक, देन ग्रुप और देन अनग्रुप। अब देखिए आप, ठीक है ना, इस तरह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, पोजीशन द इमेज इन द टेक्स्ट। अब इसमें क्या करना है हमको, पहले मैं ऑब्जेक्ट्स को हटा देती हूँ। अब मुझे कुछ टाइप करना है, तो ये देखिए, ऐसे ही रैंडम कुछ भी टाइप कर लेते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह से। अब देख रहे हैं, ये जो मैंने टाइप किया है टेक्स्ट, ये इमेज के ऊपर और नीचे सेटल हो गया है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट रैप ऑप्शन होता है वो कौन सा होता है, रैप ऑफ। इसका ये मतलब होता है कि जो भी टेक्स्ट है वो इमेज के ऊपर और इमेज के नीचे सेटल हो जाता है। अब आप देखिए, नेक्स्ट है पेज रैप। देखिए, जैसे ही इस पर क्लिक किया पेज रैप पर, जो हमारी इमेज है वो टेक्स्ट के बीच में आ गई, यानी कि टेक्स्ट जो है हमारा इमेज के अराउंड आ गया। देख रहे हैं आप, पेज रैप में इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट होता है वो अरेंज हो जाता है। नेक्स्ट हम देख सकते हैं इसमें, नेक्स्ट वन इज रैप थ्रू। रैप थ्रू में क्या होता है कि जो हमारी इमेज होती है वो अबव हो जाती है और टेक्स्ट हमारा बिलो चला जाता है। ठीक है, नाउ वी विल सी हाउ टू क्रॉप द इमेज, राइट। So right click on the image, then go to picture. There are so many tabs: type, options, wrap, hyperlink, picture, crop, borders, background, macro. And the crop option is already selected. Here you will see two options: keep scale and keep image size. In last video I have already told you about these two options. Keep scale option जो होता है ये already selected होता है, तो पहले इसी को देखते हैं हम। इसमें देखिए लेफ़्ट है, राइट, टॉप एंड बॉटम। यहाँ से आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके लेफ़्ट से क्रॉप कर सकते हैं, देन राइट से देख सकते हैं आप, टॉप से, एंड देन बॉटम, राइट। नाउ क्लिक ऑन ओके। देखिए इमेज आपकी क्रॉप हो गई और साइज़ भी इसका क्या हो गया, छोटा हो गया, राइट। नाउ आई एम डूइंग undo, right. Next again we will see on this option keep image size. Again I am increasing the value from right, from top and bottom. Okay, देखिए इसमें इसका साइज़ बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है, साइज़ इसका सेम रहता है। तो यही डिफरेंस है कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज में। तो बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए और इन ऑप्शंस को यूज़ करके देखिए, राइट। दैट्स ऑल, गुड बाय।